السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو مس عظما آئیے، جی سر۔ یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سر آپ نے جو ابھی یہ دعا پڑھی ہے، یہ جو پورا میں نے پڑھا ہے سر دعائیہ کلمات ہی ہیں، تعریف ہے سر، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد۔ زویا سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں استاد یہ خطبہ ہے۔ ہاں جی، یہ خطبہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، کیا ہے؟ مستقل سنت ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے ایک خطبہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جی سر، ان خطبات میں جو سب سے زیادہ کثرت سے آپ نے جو انداز اختیار کیا ہے، جو الفاظ آپ نے کہے ہیں وہ یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اور بھی خطبوں کے الفاظ ملتے ہیں اور خود سے بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی انتخاب کے لیے جو الفاظ چنے وہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا، جتنا بڑا بھی وہ عالم ہو، مفسر ہو، زبان کا ماہر ہو، تو وہ ویسے الفاظ نہیں لے کر آ سکتا۔ اچھا، پھر اس میں آپ دیکھیں کیا کیا چیز شامل ہے، آپ کو تھوڑا خطبے پر غور کرنا ہے۔ بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں کیا چیز ہے مس عظما، کیا کہلائے گی یہ؟ ان الحمد للہ، ٹھیک ہے، ان الحمد یقیناً، للہ نحمدہ، صحیح ہے۔ جی جی یقیناً بالکل، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے نحمدہ، ہیں۔ جی اور ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ جی سر۔ پھر کیا ہے؟ پھر مدد طلب کرنی ہے، وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، جی وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ اور جی پھر سر، تعوذ ہے، استعاذہ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اس کی پناہ میں جاتے ہیں، کس چیز سے؟ من شرور انفسنا، اپنے اپنی نفس کے شر۔ جان کے جی شر سے۔ انسان کی جان کے اندر ہی شر موجود ہے، جی سر۔ جو غلط راہوں کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہم سے غلط کام کرواتا ہے، ہمیں غلط عقائد پر کھڑا کرتا ہے۔ سو نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اور پھر ہم اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی جو شامتیں ہیں وہ ہم پر آ پڑیں اور ہم اس کا شکار ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے من یہدہ اللہ، جملہ شرطیہ ہے کہ جسے اللہ رہنمائی دے دے، فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ ومن یضلل، جسے وہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، لا نفی جنس ہیں دونوں، کہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی نہیں رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور پھر شہادتین ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو پھر اس کے آخر میں یہ شہادتین ہو جاتی ہیں اور اسی میں پھر درود شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل جو ہے وہ طریقہ تھا۔ بہت شکریہ، میں نے کہا آپ کا توجہ آپ لوگوں کی اس کے الفاظ کی طرف کروا دوں گی، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. جی تو الحمدللہ اس پہ جہاں تک کلمات کی بات ہے تو زجرتن ڈانٹ کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ مزید اس میں کوئی ایسا لفظ مستسلمون سرنڈر کرنے والے جو ہوتے ہیں مستسلم. طاغین طاغن اسم الفاعل ہے یعنی باغی سرکش. اغوا یغوی کسی کو ایکچولی ابھارنا تو اسی سے یہ پھر اسم الفاعل ہے. مزید اس میں کوئی ایسا خاص لفظ نہیں ہے جو بہت کوئی الگ ہو جس کے میننگ میں تھوڑی مشکل آئے. چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنی آیات کو. بسم اللہ کرتے ہیں. آئیے فوزیہ نسیم نواز. جی سر. جی سر. یہ ہاتھ کیوں کم کھڑے ہیں جی آج؟ عالیہ آپ کا ہاتھ کیوں نہیں کھڑا؟ امینہ صدیقی، جویریہ، عائشہ اقصیٰ کہاں ہیں آپ لوگ؟ فہیمہ، عتیقہ، طبغہ، ڈاکٹر افشاں. اوکے جی فوزیہ جی. فَإِنَّمَا جی هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. مجھے بتائیے جملے میں ہیا کیا ہے؟ مبتدا. خبر کیا ہے؟ زجرۃ واحدۃ. ٹھیک ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. یہ انا کے ساتھ ما کیا کام کر رہا ہے؟ سر یہ تو پہلے گرامیٹیکلی اس کی افیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. مبتدا اس کا اسم اور خبر نہیں رہتی انا کی، اور صرف کے معنوں میں یا زیادہ تاکید کے معنوں میں یعنی آتا ہے. اثر کا میننگ آ جاتا ہے اثر کا معنی آتا ہے. جی. میں. تو یہ اگر ہم کہیں کہ ہیا ضمیر کہاں جا رہی ہے تو یہ کہیں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اس سر. صورتحال میں اس کو کون سی ضمیر کہتے ہیں؟ ضمیر قصہ. کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی جی. ضمیر قصہ. ضمیر قصہ. اور اگر ہو یہاں پر مذکر کی ضمیر جو پیچھے کہیں نہ جا رہی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر الشان. ضمیر شان. ٹھیک ہے. اور ہیا کی صورت میں ضمیر قصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. کیا ترجمہ ہو گیا؟ تو وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی. وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی. جی نسیم نواز. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. تو فا اور اذا یہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ سر اذا فجائیہ ہے کیونکہ اس کے بعد اسم یا جملہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک اور ہے. فا بھی اچانک کے لیے جس لیے آتا ہے. بالکل ترتیب تعقیب فوراً فجائیہ. ہم ینظرون کے اعراب بتا دیں. خوب سر مبتدا ہے اور ینظرون باب نون سے نون زواد را یہ مضارع ہے. نون زوارا اور زواد. زوا. اور سر یہ فعل اور اس میں فاعل جو ہے وہ ہم ہے. ٹھیک ہے. اور کیا یہ خبر ترجمہ بن ہوا؟ جائے گا ہم فعل یا بن ینظرون. کر خبر. وہ ینظرون دیکھ رہے ہوں گے یا وہ دیکھتے دیکھ ہوں گے. رہے ہوں گے. اچھا اچانک وہ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہوگا کیا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, یعنی جب وہ چیخ کی آواز آئے گی تو اب وہ آواز یہ تو نہیں کہہ رہی ہوگی نا کہ اٹھو نکلو باہر. وہ آواز سننے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے. اس نسیم نواز, کیا میں صحیح کہہ رہا جی ہوں؟ سر. جی سر. ٹھیک ہے. اب اس آواز کے اندر وہ الفاظ تو نہیں ہوگے نا, اٹھو حساب کا وقت آ گیا ہے, چلو میدان حشر کی طرف. ایک آواز ہوگی صرف. وہ آواز اتنی دہشت ناک ہوگی کہ وہ سننے کے بعد اس کو, یعنی اس کے مختلف احوال بتائے جاتے ہیں نا مختلف آیات میں, کبھی کسی طرح انداز میں آتا ہے, کبھی کسی انداز میں, کبھی ایک اور انداز ہے کہ وہ آواز کیونکہ بھیا ہم ایک چیخ کی آواز سنیں تو کوئی ہمیں کہے کہ, یعنی کوئی ہم آواز سنیں بہت شدید, کوئی ہمیں کہے کہ اسے ایلیبوریٹ کرو, تو ہو سکتا ہے ہم اس کو مختلف انداز میں کہیں, میں اس کو کچھ کہوں, آپ اس کو کچھ کہیں, کوئی دوسری اس کو کچھ کہیں, تو اٹ از پاسبل. سو یہ ایک چیخ کی آواز ہوگی. جب وہ آواز آئے گی تو وہ قبروں سے نکلیں گے تو فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی جو ہی وہ قبروں سے نکلیں گے تو باہر تو بڑا تماشا لگا ہوگا, تو وہ جو حشر برپا ہوگا وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. یا پھر بعض علماء نے, لیکن وہ کم ہے, انہوں نے اس کا یہ میننگ بھی لیا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی اب آگے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہیں. پر زیادہ نہیں, یہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہ بھئی یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. آگے چلتے ہیں. مس نادی آگے 2 اسٹوڈنٹس کو بلائیں. جی سر. سائمہ سعدیہ آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سائمہ, قالو کا جی فائل سر. کیا ہے؟ سر کارو کا فائل ہم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کون ہے؟ سر وہی جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے. وہی جو ینظرون کا فائل ہے وہی ہے. جی وہاں سر. مضارع ہے, یہاں ماضی ہے, کیا مقصد ہے؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہو چکی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا بتا رہے ہیں حال قیامت کا ہاں جی, ہمیشہ. ایک تو یہ میننگ ہے. دوسرا میننگ جی یہ ہے, سر. جیسا میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا. زویا کیا بتایا تھا؟ استاد فعل مضارع تجدید کے معنی میں ہوتا ہے یہ. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کالو ماضی کی بات کریں, یہ کیوں آیا؟ یقینی بات ہے, اس لیے یقینی یونیورسل بات ٹروتھ ہے. کے لیے. ٹھیک ہے, جی اس میں ایک اوکے سر. تاکید ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اوکے جی سر. استاد. یعنی سننے والے, ہم جیسے مسلمان جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا, تو ہم یہ جان لیں کہ یہ ہونے والا ہے. جی سر. یعنی یہ ہو کر رہے گا اور وہ یہ بات کہیں گے اس دن. صحیح ہے. بیسیکلی جی کیا سر. ہے, تاکید, ایک سرٹنٹی ہے کہ ہوگا, لازمی ہوگا. سن لو تم سب. اوکے قالوا سر. یا ویلنا, تو سائمہ یا ویلنا کیا ہے؟ سر یہ ندبہ جو آپ نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سر ہائے ہماری بربادی کے میننگ اے میں آئے گا. ہماری بربادی. ٹھیک ہے. زویا ھذا یوم الدین, ایکسپلین کریں. جی استاد, حاضہ مبتدا ہے, یوم الدین مرکب اضافی بن کے اس کی خبر. ھذا یہ مبتدا ہے, یوم یوم الدین. خبر ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ جی, یہ فیصلے کا دن ہے, بدلے کا دن ہے. دین, بدلے کا دن ہے. بدلے جی کا دن, یوم الدین, جس دن جزائیں دی جائیں گی, بدلے دیے جائیں گے ہمارے. قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین. اب یہاں بھی علماء میں 2 رائے قائم ہوئی ہیں. کچھ علماء نے کہا ہے, لیکن وہ کم ہیں. کیا کہتے ہیں کہ قالوا یا ویلنا, یہاں پر جو قبروں سے کھڑے ہونے والے ہیں, جو انکاری تھے اس معاملے کے کہ یہ روز قیامت کے معاملہ ہوگا, یہ قول ان کا ہے. ان کا یہ کہنا, یہ قول ان کا ہے. اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ الگ ہے, اور یہ قول ہے ملائکہ کا, کہ ہاں وہ جب دیکھ رہے ہیں قالوا یا ویلنا, فرشتے کہیں گے ھذا یوم الدین, یہ جزائے یعنی جزا کا دن ہے. لیکن اکثر علماء نے یہی رائے اختیار کی کہ نہیں, یہ انہی کا قول ہے. بات آگے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, اب آپس میں ان کی بات چیت ہوگی. قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین, یہ تو بدلے کا دن ہے.
ठीक है, ओके। मुझे ये बताएं साइमा, जी सर। अल्लज़ी की इराबी हालत क्या है जुमले में? सर ये रफा है। अच्छा, जोया इसकी इराबी हालत क्या है जुमले में? उस्ताद ये मजरूर है सिर्फ ये मजरूर है। अब आप साइमा को बताइए ये मजरूर क्यों है? हाँ, सर वो क्योंकि ये मैंने सिर्फ यौमा की अल सिफ्त बनाई फस्ल थी। की। जोया बताएं इन्हें। जी उस्ताद, ये मौरफ बिल लाम इसम के बाद ये सिफ्त बन के आता है, तो सिफ्त अपने मौसूफ की पैरवी करेगा। तो ये किसकी सिफ्त है? सर अल फसल की इन्होंने बनाई थी और मेरे ज़हन में था ये यौमा की सिफ्त बन रही है। नहीं नहीं, हादा यौमुल फस्ल अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। नहीं, सही है, जोया ने ठीक बताया है। जी उस्ताद, ये हाँ जी, मुजाफ की वेरी सिफ्त गुड हो रही साइमा, है। आपने बहुत ठीक बताया है। जज़ाकल्लाह सर। माशा अल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत दे। बिल्कुल, ये यौम की, क्योंकि असल तो बात यौम की हो रही है, इनकार भी इसी का था, वो तो जी उसका सर। मुजाफ इलैह है। सही है, जी उस्ताद। वेरी गुड, माशा अल्लाह। आपको तो फिर कोई वो देना चाहिए, इनाम। क्यों मिस नादिया ने इनको इनाम देना चाहिए ना? सर जज़ाकल्लाह बिल्कुल सर। देना चाहिए। चलें फिर, ठीक है, मैं आपको एक सीरत नबी की जो किताब है वो हदिया भेजूंगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह सर। चलें, हादा यौमुल फस्ल अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। ओके, अब मुझे जोया ये बताएं कि यौमुल फस्ल का जुमले में क्या मकाम है? उस्ताद ये खबर है। हाँ जी, ये खबर है, ठीक है। सो फसल किसे कहते हैं जोया? फैसले का दिन, यानी फैसले का दिन, ठीक है, जिस दिन असल में फसल फैसला करा होता है। जाएगा। हादा यौमुल फसल, फैसला, जिसमें किसी चीज को अलग कर दिया जाएगा ना, दो मामलात को तय करके, सेपरेट करके एक फसल कायम कर दी जाएगी, ठीक है। जी। सो जी उस्ताद। हादा यौमुल फसली, फसल बेसी बसाओकात बाढ़ को भी कहा जाता है, ठीक है ना। हमारे उर्दू में तो फसल होता है ना, कपास, जो खेत होते हैं, उसमें जो उगाया जाता है उसको फसल कहते हैं। तो हादा यौमुल फसली अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। ओके, मुझे ये बताएं साइमा कि जी सर। अल्लज़ी का सिला क्या है? सर कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। कुंतुम का इसम क्या है? सर अंतुम। अंतुम है, गुड। और बिही में हाँ ज़मीर कहाँ जा रही है? कुंतुम भी सर ये इसी यौम की तरफ। ये अल्लज़ी की तरफ आएगी, ठीक अल्लाह है। जी की तरफ। वही वो, अल्लाह जी की तरफ। जो उस जुमले में सिले में जो ज़मायर होते हैं ना, मोस्टली इस तरह से बिही जी सर। वगैरह के, वो वापस उसी सिला की तरफ आते हैं। अल्लाह की ओके, तरफ जा रहे तो हैं। जी सर। कज़्ज़िबून कौन से बाब से है? सर ये बाब तफसीर से कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, काफ ज़ाल बा जो है इसका मादा। ठीक है, काफ जाल बा मादा, अंतुम फाइल। तो जी सर। जोया क्या तर्जुमा हुआ पूरे जुमले का? हादा यौमुल फस्ल अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। जी, ये ही फैसले का दिन है जिसका तुम इनकार किया करते थे, जिसे तुम तुम, झुटलाया करते थे। हाँ जी, जो तुकज़्ज़िबून क्यों लाया गया है जोया? माजी क्यों नहीं लाया गया? उस्ताद फिर ये इस्तेमरार के मानी में होगा कि हाँ, वो मुसलसल झुटलाते थे। तुम इसके झुटलाने पर मुसिर थे, तजदीद जी। करते थे अपनी इस बात की, करते रहते थे ये काम। सो जी। ये उनका आपस में कॉल कॉल है, ठीक है। यानी वो एक दूसरे को अब कह रहे हो, हादा कालू या वैलना हादा यौमुद्दीन हादा यौमुल फस्ल अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। बस औकात इंसान आपस में भी तो कहता है ना, जिसका तुम कर रहे थे ये वही आ गया ना। जैसे हम कहते हैं तुम ये क्या बात कर रहे थे, हालांकि जो कहने वाला है वो भी इसका इनकारी होता है। बाज ये भी कहते हैं कि जो मोमिनीन सुनेंगे ये बात उनसे कि कालू या वैलना हादा यौमुद्दीन, मोमिनीन उन्हें कहेंगे हादा यौमुल फस्ल अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, यही है वो दिन जिसका तुम इनकार करते थे, ठीक है। तो ये इस मामले में उलमा ने राय इख्तियार की है। अच्छा, एक बात याद रहे, इस तरह की आयात की जो जो वजाहतें हैं उसमें एहतियात का तकाजा भी है। दूसरा, इसमें जब सहाबा के अकवाल मिल जाएं तो बस फिर वही फाइनल है, मजीद फिर उसको छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा आप लोगों ने जब भी तफसीर कभी पढ़ें और किसी को सुनाएं तो ये बात ध्यान रखनी है कि जहां सहाबा का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद हो, फिर वहां बहुत एहतियात के साथ अपना वहां पे मजीद दिलाने की जरूरत नहीं है। ओके, मिस नादिया नेक्स्ट दो स्टूडेंट को बुलाएं। जी सर।
मिस उस्मा हो गई है सर? नहीं नहीं, जी मिस उस्मा और अतीका आ जाइए। जी सर। जी। उहशुरुल्लज़ीना, उहशुरु के बारे में बताएं मिस उज़मा। उहशुरु फेले अम्र है, अहशरा हशरा यहशुरु से, ये बाब नून से है, और अंतुम इसका फाइल है। वेरी गुड। उहशुरु, क्या जमा तर्जमा हुआ इसका? उहशुरु, तुम सब जमा हो जाओ। नहीं, नहीं, तुम सब जमा करो। करो, हुक्म तुम दिया सब जमा इकट्ठे करो। करना। जी हशरा यहशुरु, जी, इकट्ठा करना। करना। ठीक जी, है, तुम सब जमा करो। पहले मुतद्दी है। जी, फेले ओके, मुतादी है, बिल्कुल। अतीका मुझे ये बताएं, अल्लज़ीना का इराबी हालत क्या है? अल्लज़ीना, सर ये मंसूब है, ये मफूल बन रहा है। मंसूब बन रहा है, ठीक है। क्या तर्जुमा हो? उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू, तुम सब इकट्ठा करो उन्हें जिन्होंने जुल्म किया। ठीक है। मिस उज़मा, जी सर। वमा कानू यअबुदून, माँ की इराबी हालत क्या है? मंसूब है सर। मंसूब है, गुड। और आगे इसका सिला हो गया, फिर कानू याबुदून का तर्जुमा भी और ग्रामर कर दें। सर माँ यहाँ पर मौसूला है और मंसूब हालत में है, जिसका सिलतुल मौसूल जुमला फेलिया कानू याबुदूना। काना का इस्म इसमें हुम है, और काना की खबर याबुदूना है, अबदा याबुदू बाबे नून से। और इसका तर्जुमा है जिसकी वो इबादत किया करते थे। अच्छा, ठीक है। तो असल में मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि जो ओरिजिनल अरबिक लैंग्वेज है उसमें कानू का इसम क्या है? वाओ। ओके सर। और फेले मुजारे में जो फाइल है ग्रामर के हिसाब से वो है वाओ नून, ठीक है। ओके सर। तो ये जी सर। हमने क्यों उसको अडॉप्ट किया हुआ है? हम बातें वही हो जाती हैं, हमने इसलिए लिया हो कि ये हम हमारे आसानी से हमें समझ आ रहा है, ठीक है। जी तो बिल्कुल सर। इसलिए हमने इसे चुना हुआ है अपनी मर्जी से, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने अपनी आसानी के लिए ये जो हमने चूज किया हुआ है। ओके, सो जी सर। अज़वाजहुम मंसूब क्यों है? ज़ालमू का मफूल है मिस उज़मा। सर ये भी मफूल है, दूसरा मफूल अतफ हो रहा है ज़लम पे। ठीक है, उस पे अतफ हो रहा है, ज़ालमू पे अतफ नहीं हो रहा, अल्लज़ीना पे हो रहा है। अल्लज़ीना पे, जी सर। ठीक है, तो अतीका क्या तर्जुमा हुआ पूरे हिस्से का? जी सर, तुम इकट्ठा करो उन्हें जिन्होंने जुल्म किया और उनके साथियों को, और उनको जिनकी जिनकी वो इबादत करते ये थे। अज़वाज का तर्जुमा साथी आपने कहाँ से देखा है अतीका? अज़वाज का मतलब तो बीवियां नहीं होता? नहीं सर, बीवियां भी, और मतलब जो साथ उनके साथी हों, साम शरीक हों, तो उस हिसाब से किया। अच्छा, माशाअल्लाह। ठीक है, आपने बिल्कुल सही तर्जुमा किया है। यहाँ अज़वाज से मुराद बीवियां नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन है कि जालिम की बीवी जालिम ना हो, काफिर की, जी पुराने दौर में काफिर की बीवी काफिरा ना हो, मोमिन हो। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से है। यानी हम जिन्स से मुराद है कि एक ही तरह के काम करने वाले, यानी अल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, जिन्होंने जुल्म किया और जो मजीद उन जैसे काम करने वाले थे, उन जैसे। इसीलिए ऐसी महफिलों से भी दूर रहना चाहिए कि बंदा उनके साथ शामिल हो जाए। सो मिस उज़मा, ज़ालमू से मुराद क्या है यहाँ पर? अम, सर शिर्क किया, अल्लाह के साथ शरीक किया, तो ये फिर वमा बहुत बड़ा कानू जुल्म। याबुदून मिन दूनिल्लाह का क्या मतलब होगा? वो फिर अलग क्यों बयान किया गया? सर ये तो उनकी बात हो रही है ना, जिनकी वो इबादत किया करते थे, जिनकी वो यानी जो इबादत करते थे, माबूद गुड थे। जी, गुड। जो इलाह जो उन्होंने बनाए हाँ हुए जी, थे। अच्छा। ज़ालमू, ज़ालमू, जी इसकी जो तफसील है उसके अंदर क्या है? मुशरिकीन, जी ठीक। फिर मजीद भी शामिल है, ये अकेले मुशरिकीन नहीं है। मुशरिकीन तो ये तो सबसे बड़ा जुल्म है ना, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जी फिर सर। मोमिनीन के अंदर चोर, फॉर एग्जाम्पल चोरी करने वाले, फ्रॉड करने वाले,
जिना करने वाले, ठीक है, और जो कबीरा जी गुनाह के जो होंगे, ठीक है, वो सब इसी कैटेगरी में शामिल होंगे। इसीलिए जी ये सर। फरमाया कि अल्लज़ीना कफरू, बल्कि अल्लज़ीना ज़लमू, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, क्या मतलब है ज़लमतु नफ्सी? मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, हाँ जी, क्या मुराद है इससे? अपने नफ्स पर जुल्म कैसे करता है इंसान? यानी गुनाह किए, गुनाह नाफरमानी किए, करके। तो इसका मतलब गुनाह करना जुल्म है। जी तो इसलिए आया अल्लज़ीना ज़लमू वो अज़वाजहुम, और उन जैसे मजीद भी, यानी उन जैसे जो जोड़े हैं, जो उन जैसे काम करने वाले, वमा कानू याबुदूना, और वो जिनकी इबादत किया करते थे। तो लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी इबादत करते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम की भी करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी होने लगी है, जो कि एलानिया नहीं है, ढकी छुपी है, बड़े तरीके से हो रही है, लेकिन हो रही है, कोई माने या ना जी माने, मनो या ना मनो, फिर आगे नीचे कमेंट करते हैं। तो बताइए, फिर ये तो कहा जा रहा है कि वमा कानू याबुदूना, उनको भी बुला लें जिनकी ये इबादत करते थे। तो मिस उज़मा, फिर क्या मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी बुलाया जाएगा? सर, वो तो पहले ही मुबर्रा कर हो जाएंगे ना, नबी तो इनकार कर देंगे ना कि ये हम पर बुहतान है, हमने तो इनको ये तालीम नहीं दी थी। जितने और वो, हाजिर तो सभी होंगे सर। नहीं, जितने वो जिन्होंने अपनी इबादत का नहीं कहा था, जी ना उनकी ये तालीमात थी, ना उनका ये तरीका था, वो इसमें इस्तिस्ना रहेगा। ओके सर। मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा आलिम है, उसने कभी इस बात की दावत किसी को नहीं दी कि मेरी इबादत करो, लेकिन लोग करने लग जाएं और वो दुनिया से चला जी गया, तो वो उसका कसूरवार वो तो नहीं है ना। जी बिल्कुल ऐसे जैसे ही। वो जो 5 बुजुर्ग हैं जिनका तज़किरा सूरह नूह में मिलता है, तो शैतान जी ने सर। उनकी इबादत करवाई थी ना, हालांकि उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारी, वो तो अल्लाह के बड़े करीबी लोग थे, तो अल्लाह के बड़े जी जी नेक बिल्कुल। बंदे थे। ऐसा तो जी नहीं सर। कि अब रोजे क़यामत वो भी आ जाएंगे, आओ भी तुम भी आओ, नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम की हुक्म नहीं दिया, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं होंगे, वो इस्तिस्ना है सारा। जी वमा सर। कानू यअबुदूना मिन दूनिल्लाहि। अच्छा, यहाँ पे ये मिन दूनिल्लाह का जो ताल्लुक याबुदून के साथ इस तरह से है, वमा कानू यअबुदूना, जिनकी वो इबादत किया करते थे, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा। अच्छा, यहाँ पर उलमाए ग्रामर का कहना है कि इस तरह के फेल में एक हाल माजूफ होता है। क्या होता है? हाल माजूफ। यानी वमा कानू यअबुदूना आबिदीन मिन दूनिल्लाहि, सही है। जी सर। इसको वो कहते हैं, ये असल में उस मुतल्ले के हाल है, सही है। ओके। जी सर, समझ गए। इस तरह से इसका एराब किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। सो अतीका बताइए, फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, इस पूरे जुमले को एक्सप्लेन कर दें। जी सर। फा यहाँ पे आतिफा और फाहदू, ये इहदू है अमर, और अंतुम इसका फाइल, हम इसमें मफऊल है, इला सिरातिल जहीमी ये मुतल्लिक हो जाएगा, और सिरातिल जहीमी ये रकबे इजाफी है। हम मफूल है, फाहदू, अंतुम फाइल है, इला सिरातिल जहीम मुतल्लिक फेल है। क्या तर्जुमा हुआ? बस तुम उन्हें जहन्नम का रास्ता दिखाओ। अतीका, ये इतनी अच्छा तर्जुमा कहाँ से पढ़ के आई हैं आप? सर खुद किया है। कौन से कुरान से पढ़ा है? अच्छा, सही है। तो मिस उज़मा, मुझे बताइए, ये हदा यहदी क्यों आया फेल? ये तो हिदायत की मीनिंग में होता है, रहनुमाई, और ये सिर्फ हिदायत के मानी में अक्सर इस्तेमाल होता है। यहाँ रोज़े क़यामत, इसका अल्फाज का इस्तेमाल का तकरीबन क्या मकसद हो सकता है? सर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मानी आ रहे हैं यहाँ पर कि अब इनको आप उधर की ही हिदायत दें, बस कि ये दोज़ख ही की तरफ जाएं, जी अतीका, उधर आप ही क्या का कहती रास्ता। हैं? जी सर, दोज़ख की बात हो रही है ना, वो जालिमों की बात हो रही, तो फिर नहीं, इनको उधर का हदा रास्ता यहदी है। ही इस्तेमाल क्यों हुआ है? जी सर, आप बताइए। अतीका बताइए। जी सर, आप ही बताएं। वो तो मिस उज़मा ने बता दिया, और मिस उज़मा ने तकरीबन बिल्कुल ठीक बताया कि ये बेसिकली उनकी उनको यानी बेसिकली उनको उनकी तहकीर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह आलम बिस्सवाब।
फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, यानी लफ्ज हिदायत के इस्तेमाल की गई, रहनुमाई, एक अच्छे रास्ते की तरफ रहनुमाई, लेकिन उनको यहाँ पे बेसिकली उनकी तहकीर के लिए जरा दिखाओ ना इनको जरा असल रास्ता जिसके ये मुस्तहिक हैं। फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, इन्हें जहन्नम की राह दिखाओ। ठीक है, तो गुड, माशाल्लाह मिस उस्मा। ओके, सो मिस नादिया आगे चलें, नेक्स्ट दो स्टूडेंट। जी सर, फहीमा आ जाइए, और रुखसाना चौधरी हो गई है सर? नहीं, ओके। जी सर। जी आगे पढ़ें फहीमा। जी, वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून। ओके, रुखसाना चौधरी, वाकिफूहुम क्या है, एक्सप्लेन करें। सर ये फेले अमर है और अंतिम इसका फाइल है और हुम मफूल है। ये वाव क्या है? मिस रुखसाना अपना मोबाइल म्यूट रखा करें, ये बात आपको पहले भी की गई है। जी जी सर। आपके बीच में या तो वाइब्रेशन आ रही होती है या टोन्स आ रही होती हैं। जी जी जी, ये वाव क्या है? ये वाव इस्तिनाफिया है। इस्तिनाफिया नहीं, अतफ है। जी वशुरू, जी सर। अमर का सीगा इकट्ठे करो। फहदूहुम, ये उसके बाद का अमल, ताकीब के लिए, अतफ के लिए, फहदूहुम। और ये एक दूसरा अतफ है उस अमर पर, वकीफूहुम। क्या मतलब हुआ वकीफूहुम? फाइल क्या है वकीफू का? फाइल इसका अंतुम है। वाव काफ फा मादा वाकफा याकिफू, यकीफु ताकिफूना से अमर का सीगा बना, ताकिफूना, ताकिफूना। सो ता ड्रॉप हुआ, नून भी ड्रॉप हुआ, बन गया किफू, किफू अंतुम फाइल, हुम मफऊल। किफू हुम क्या मतलब हुआ? कौम को खड़ा करो। इनको ठहराओ। खड़ा करना जी क्या जी है? कोई आदमी चल रहा हो उसे कहा जी जाए जी किफ। क्या कहा जाए? किफ। जी किफ। सर। किफ और कुम में क्या फर्क है? जी सर, किफ यानी ठहराओ और तुम यानी खड़ा करो, खड़े हो हाँ जाओ। जी, किफ ये ठहर जाना, और ठहर- कुम खड़ा होना। सही है। एक आदमी बैठा हुआ है उसे मैं कहूँ कुम, खड़े हो जाओ। एक आदमी चल रहा है उसे कहूँ किफ, रुक जाओ, स्टॉप। तो दोनों में ये फर्क है। ओके, किफूहुम। मिस फहीमा आगे इन्नहुम मसऊलून को एक्सप्लेन करें। इन्नहुम मसऊलून, इन्ना हरफ तौकीद व नसब, हुम इसमें इसका इस्म इन्ना है, मसऊलून खबरू इन्ना है, इस्म मफऊल है। ये सीन हमजा लाम वाव फासिल साला क्या यसल, तर्जुमा हुआ इन्नहुम मसऊलून? बेशक वो सवाल किए जाएंगे। हाँ जी, वो सवाल किए जाने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये यहाँ आया उहशुरू, उन्हें इकट्ठा करो, फिर कहा गया फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, उन्हें कह दिया गया इन्हें ले जाओ, जहन्नम का रास्ता दिखाओ। फिर कहा गया वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून। हालांकि फहदूहुम इला सिरातिल जहीम में तो हो गया कि इनको जरा जहन्नम की राह दिखाओ, फैसला तो हो चुका। तो ये क्या बात है वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून? यानी कि उनसे उनके शिर्क की वजह पूछने के लिए उनको ठहराया जाएगा। नहीं तो पहले फैसला कैसे कर दिया गया बिना पूछे? आप हाँ जी। बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बता दीजिए। कभी आपने देखा है कि अंदाज जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो जाते जाते रोका जाता है, जरा रुको ना तुम, जरा ठहरो। अच्छा, सही। कभी हुआ, देखा है ऐसा अंदाज? जी, कभी होगा है। स्कूलों में भी होता है, वालिदैन भी जी कर जी जी। लेते हैं। हम्म सजा सुना चुके होते फिर कहते जरा रुकना। हम्म, सही। सही है। जी बेसिकली जी। उसमें डांट डपट का एक अंदाज होता है। अच्छा। वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून, जरा रोको ना इन्हें जरा ठहराओ। इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछा जाए। हम्म, ठीक है, तो ये एक अंदाज है कि अब ठीक उनको जहन्नुम में दाखिले से पहले आग के किनारे पर फिर रोक लिया जाएगा। वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून। अब है। उनको चंद सवालात किया जाएंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को अंदाज पहले वजाहत कर दी कि देखें ये अंदाज किस किस्म का है। सही। ओके, मालकुम ला तनासरून, रुखसाना चौधरी, तनासरून कौन सा फेल है? सर ये इस्मुल फाइल है सर। अच्छा,
नहीं मैंने सॉरी फेल कह दिया तो फिर इस्मुल फाइल सॉरी की सॉरी रह गई थी। सॉरी सॉरी सर, ये फेले माजी है अच्छा ये फेल माजी है, सुभान अल्लाह, सर। ये तनासर है, ये तनासरून से नहीं है, बाबे सुभान अल्लाह। तफाउल से। अरबी जुबान के बारे में आपकी ग्रामर की एक्सप्लेनेशन, ये फेल माजी है, आपकी किताब में ऐसा माजी पढ़ाया जाएगा? मिस रुखसाना क्या है ये? सर मुझसे पूछ रहे हैं? मिस रुखसाना चौधरी जी सर। बताएं ना, बोले, आप खामोश क्यों हैं? सर मैंने इसे बाबे तफाउल से ही लिखा था कि वो मतलब तुम आपस में मदद करते हो तो नहीं तो मदद माजी के है या साथ ही। मुजारे है? सर मुजारे है। पहले माजी क्यों था, अब मुजारे में कन्वर्ट हो गया? सर बाबे तफाउल से ता आता है ना, इसलिए। नहीं आपने माजी कहा था ना, सवाल मैं ये कर रहा हूँ। जी सर। मुजारे है, नून सादरा जी सर। बाब तफाउल से है, ततनासरूना क्या है? जी सर, तनासरून। ततनासरूना, एक ता ड्रॉप है, सही है? जी सर। अच्छा, इस एक ता ड्रॉप होने की बहुत से उलमा बहुत सी अपनी अपनी जवाब देते हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा जवाब पसंद आया, जो मेरे दिल को लगा, वो दलाइल के साथ था, जो मैंने एक किताब में पढ़ा था। उन्होंने ये कहा कि असल में कुरान मजीद के अगर आप अफ़आल को चेक करें कि जहां पर बाब तफाउल या तफाउल, जहां पर दो ता या दो या इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां पर कहाँ ड्रॉप हुई है कहाँ नहीं ड्रॉप हुई, उन्होंने अपनी एक तहकीक की है, उन्होंने अपना एक अंदाजा लगाया है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह कभी बेशक माफ फरमाए। उनका कहना है कि कोई भी अमल जिसका तरफ कुरान मजीद में इशारा सिर्फ एक ही बार होने को है या बहुत कम होता है वो अमल, एक ही बार या उस अमल का होना यानी बहुत कम होता है, कलील अमल है, सही है? मिस जी रुखसाना सर। आप कोई हाँ ना तो जी सर। करें। जी सर। जी जी सर। एक बार हो या फिर कलील हो, उस सूरत में इस बाब तफाउल या तफाउल दोनों में एक ता या एक या अगर आ रही हो तो वो ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन जी वही सर। फेल अगर ऐसी जगह इस्तेमाल हुआ है कुरान में कि जो अमल बार बार होता है, वहां ऐसा नहीं किया गया। मिस फहीमा समझ आ गई बात? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्या आ कहा गई है। मैंने, जरा रिपीट करें। जी आपने कहा कोई ऐसा अमल हो जो एक बार हो या कलील दफा हुआ हो, तो फिर उस सूरत पे बाबे तफाउल और तफाउल इनकी एक ता ड्रॉप हो जाएगी। मुजारे में एक था जाहिर। या यहाँ आ रही हो तो वो ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप। डबलिंग नहीं की जाती। जी और जहां सही। अमल एक ही बार हो यानी बार बार होना हो, रिपीटेड, जैसे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका है, क्या जी है? ततनज़्ज़लुल मला तत नहीं सॉरी क्या? कहीं मैं रिवर्स तो नहीं बता गया? मुझे भी शक हो गया कहीं मैं रिवर्स ना बता गया हूँ। बहरहाल पॉसिबल है मैं रिवर्स बता गया हूँ। सही ठीक ठीक है। है, तो इसको मैं एक जी दफा दोबारा कंफर्म करूंगा। बहरहाल अभी जब तक जो मुझे बात याद रही, क्योंकि बहुत अरसा हो गया पढ़े हुए, तो चीजें ही ऐसी हैं जो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, इसलिए जहन में नहीं रहती हैं, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को जहन में रखना जी सर जी मुश्किल ये रहता है। भी एक अल्लाह ताला ही किसी को अता कर दे तो बड़ी खास उस पर करम नवाजी होती है। तो बेशक। बहरहाल इसको मैं देखूंगा, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है शायद ये ऐसा ही है कि कोई अमल जो एक ही बार होना हो या कलील हो, उसमें कुरान मजीद में दो ता में से एक ड्रॉप है। ठीक है, जी अब ये टॉपिक मुझे दोबारा अगले लेक्चर में खोलना पड़ेगा, बट आई विल सी इंशाल्लाह क्या मेरी ये बात सही थी या इसके रिवर्स है। रिवर्स भी हो सकती है, सही है ना, सही सही। कि बार बार होने वाले अमल में दो ताएं बरकरार रखी गई हैं और एक बार में ड्रॉप कर दी गई है, तो ये रिवर्स भी हो सही। सकता है। बहरहाल सो मुझे ये बताइए फहीमा, माँ की इराबी हालत क्या है? जी सर जी ये मुब्तदा है इसलिए रफा है। और लकुम क्या है? लकुम इसकी खबर है। ला तनासरूना को जुमले में क्या मकाम देंगी?
सर जी मुझे तो काफी सोचने के बाद हाल लग रहा था कुम का, हाल तो ही मैं है, तो हाल बना। वेरी गुड, अच्छा हाल है। तो बताइए रुखसाना, क्या तर्जुमा हुआ मा लकुम ला तनासरून? क्या है तुम्हारे लिए तुम आपस में अच्छा, मदद तुम्हारे लिए नहीं क्या करते? है? हाँ जी, तुम्हारे लिए यहाँ हमने खाने का इंतजाम किया है, ऐसे ही। सर वो ला का तर्जुमा लाम हर्फ ला जर का का तर्जुमा आपने के लिए अपनी जिंदगी में क्या पत्थर के ऊपर नक्श कर लिया है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखा करें। और तुम्हें क्या हुआ? माला का ये हम कई बार मदीना अरबिक में भी देख चुके हैं। इसका मतलब होता है तुम्हें क्या हुआ है। जी सर। मिस रुखसाना, बड़ी हो जाएं आप बताइए मालकुम ला तनासरून। तुम्हें क्या हुआ है तुम आपस में मदद एक दूसरे की मदद नहीं करते हो? वेरी गुड, तुम्हें क्या हुआ है, मालकुम ला तनासरून, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मदद नहीं कर रहे हो एक दूसरे की। ऐसा रुखसाना क्यों कहा गया, ये क्या जरूरत आई वहां पर ये कहने की? क्योंकि वो लोग जो जिन जिन बुतों की पूजा करते थे तो वो लोग वहां पर उनकी मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए ऐसे कहा जा रहा है। क्योंकि वहां पर वो लोग खुद इनकारी हो जाएंगे कि नहीं, हमने आपको नहीं कहा था हमारी इबादत करने के देखें, लिए। ये वो भी शामिल हैं, और वैसे भी आपस में यहाँ यहाँ कोई फिक्स नहीं है। यहाँ वैसे ही है एक दूसरे की मदद करना। यहाँ काफिर नहीं एक दूसरे की मदद करते। जी जी सर। गुनाहगार एक दूसरे गुनाहगार की मदद कर रहा होता है, उसको बचा रहा होता है। तो ये उनको वहां उनकी तहकीर के लिए किया गया। हाँ जी, क्या हुआ है, आज मदद नहीं कर रहे हो एक दूसरे की? दुनिया में तो बड़े एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, एक दूसरे की सपोर्ट करने, एक दूसरे के गुनाहों को बचाने, एक दूसरे के जुल्म को बचाने, एक दूसरे के कुफर और शिर्क को बचाने में। आज खामोशी छा गई है। ओके, बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून। रुखसाना, बल किस लिए आया करता है? बल इजराबी है सर, जैसे अगर बल टाली होगा तो पिछली बात को कैंसिल आउट करके इजराबी को छोड़ के सीधे लफ्ज में बताएं, सादा अल्फाज में, कि बल क्या कर रहा है। बल अतफ का काम करता है। अच्छा, तो इसका मकसद क्या होता है? पिछली बात के मतलब नफी करके आगे अगली बात जी की बेटा, तस्दीक असल जवाब ये है, ये इजराबी आप ना भी बोलें तो फर्क नहीं पड़ता। जी सर। मुश्किल मुश्किल लफ्ज की तरफ तवज्जो ना दिया करें, उसका मकसद बता दिया करें सीधा सीधा। इसका ये जी जी मकसद है जी कि पिछली बात जी की सर। नफी अगली बात को लेकर आ रहे हैं, पिछली बात की जी नफी क्यों करें। बल, ओके, जी सर। हुमुल यौम मुस्तस्लिमून। तो मुझे बताएं, मुस्तस्लिमून कौन से बाब से है? बाब इस्तिफाल से। इस्तिफाल से। सो इस्तस्लमा यस्तस्लिमु। क्या तर्जुमा होता है इसका? बल्कि वो आज फर्मा बरदार हैं। मुस्तस्लिमून का मतलब क्या होता है? सर मतलब फर्मा बरदारी करना। अच्छा, अतीका फहीमा, क्या मतलब है मुस्तस्लिम? सर जी इसमें मुबालगे के साथ फर्मा बरदारी, क्या मतलब? ऐसे यानी कि बहुत ज्यादा फर्मा बरदार होना। देखें, सीन लाम मीम आता है, जी, बाबे फाल में डालें तो क्या मतलब होता है? फर्मा बरदार होना। अफ आला युफिलु, अस्लमा युस्लिमु, जी फर्माबरदार हो जाना, सरेंडर कर देना, ठीक है। जी। इस्लाम कबूल कर लेना जिसे हम कहते हैं ना। हाँ जी। सो जंग में जब कैदी होते हैं ना, जी जी। तो उसे कहते हैं मुस्तस्लमा, इस्तस्लमा फुलानुन, फलां ने खुद को हवाले कर दिया, सही। ठीक है। जी तो बिल्कुल। ठीक है, अब वो तर्जुमा बात फर्मा बरदारी भी हो जाएगा, खुद को हवाले कर देना भी, ठीक है मैं अब आपका फर्मा बरदार हूँ, ठीक है, खुद को हवाले कर देना कि बस आज के बाद हम आपकी कोई भी हुक्मदुली नहीं करेंगे, बस हम आपके हवाले हैं। तो अब यहाँ पे ये नहीं लाया कि बल हुमुल यौम मुस्लिमून, गौर है ना, जी मुस्लिमून भी तो बिल्कुल। लाया जा सकता था, हाँ जी, क्योंकि अब उस दिन मुस्लिम नहीं हो सकते, चलिए अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है ना सर जी, चॉइस तो नहीं, अब है मुस्तस्लिम, हवाले कर देना खुद को, बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून। ओके, हुम ठीक। मुब्तदा है, यौम ज़र्फ है, मुस्तस्लिम इस्मुल फाइल का सीगा। गुड, ओके। सो मिस नादिया, नेक्स्ट आगे चलें। जी सर, अक्सा आप आइए और दोबारा ऊपर से शुरू कर दें।
जी सर, जी अक्सा सर। एंड फौजिया मुबश्शिर। ओके, अक्सा मुझे बताइए, अकबला बादुहुम अला बादी, बादुहुम मरफू क्यों है? सर क्योंकि ये अकबला का फाइल है, गुड, अकबला कौन से बाब से है? बाबी इफ़ाल से। ठीक है, अला बादिन मुतल्लिक हो गया, क्या तर्जुमा हुआ अकबला बादुहुम अला बादिन? सर अकबला का मानी क्या होगा? अकबला बेसिकली आगे बढ़ना होता है, ठीक है। जी सो यहाँ पे है अकबला बादुहुम अला बादिन, यानी उनमें और से बाज बाज की तरफ बढ़ेंगे जी सर। या उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे, ठीक है। वो अकबला बादुहुम अला बादिन, जी सर, सही उनमें है। से बाज जी सर। और ये अगर इला इला के साथ हो तो फिर आगे बढ़ना होता है, सही है। जी यानी सर। अकबल तु इलैकी, मैं आपकी तरफ बढ़ा, और अकबल तु अलैकी, मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ, ठीक है। जी सर, ओके, मुतवज्जे होना। क्या तर्जुमा करेंगी? उनमें से बाज की तरफ मुतवज्जा होंगे। हाँ जी, हम होंगे क्यों कह रहे हैं, अकबला तो माजी है। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है पहले के, जो उसके पहले बात अलावा चल रही है। उसके अलावा ये यकीनी बात है कि ऐसा होने वाला है। जी सर। रोजे क़यामत के अहवाल माजी के साथ इसलिए आते हैं कि ये ताकीद है, अरबी जुबान के उसूल है, ताकीदी बात माजी के हिसाब से कर दी जाती है। यतसाअलून का क्या मकाम है जुमले में जवेरिया? सिफत बन रही है ये किसकी? बादिन की। आयशा आप बताइए, जी सर। ये क्या यतसाअलून, ये क्या बन रहा है जुमले में? सर सिफत लग रही है। फौजिया मुबश्शिर, सर मैंने तो हाल बनाया उसको। किसका हाल बनाया? सर हम का हाल बनाया है हाँ जुल्हाल। जी, बादुहुम अला बादिन, ये यतसाअलून। आयशा, अक्सा, जवेरिया, आप किसकी सिफ्त बना रही हैं इसको? जी सर। देखिए, जो जो लोग मुतवज्जे हुए हैं ये वही है ना, वो आपस में एक दूसरे में सवाल करेंगे। तसाअल यतसाअलु बाब तफाउल से पहले मुजारे का सीगा, ठीक है, और जी हम इसका फाइल हो गया, तो आपस में एक दूसरे से पूछेंगे। वअक़बल बादुहुम अला बादिन यतसाअलूना। ओके, मुझे ये बताइए, अक्सा कालू का फाइल क्या है? सर कालू का फाइल हम है, ये कौन है? ये जो पहले आयत में है, जी, मुशरिक। वही जो बादुहुम है आपस में जो कह रहे हैं। जी सर। तो क्या कहेंगे? कालू, वो कहेंगे, उनका मकूला है इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन। मुझे बताइए, इन्ना की खबर क्या है? कुंतुम तातूनना अनिल यमीन। ठीक है। जवेरिया, कुंतुम का इस्म क्या है? अंतुम। ठीक है। और आयशा, कुंतुम की खबर क्या है? तातूना अनिल यमीन। ये है खबर कुंतुम की। ओके, गुड। सो मुझे बताइए फौजिया, तातूना ना, ये ना क्या है जुमले में? तातूना ना, सर ये मफूल है। वेरी गुड। तातूना का फाइल क्या है? अंतुम। अंतुम, अता या अति बाब दाराबा से, ठीक है। कुंतुम का इसम क्या है फौजिया? अंतुम। अंतुम, गुड। अक्सा, इन्नकुम जी कुंतुम सर। तातूनना अनिल यमीन, मतलब दाएं तरफ से मुराद है कि हक के रास्ते की रिप्लेसमेंट में आना, यानी दाएं तरफ से आना, ताकि हम सीधी बात ना सुन सके। तो क्या तर्जुमा है इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन? बेशक तुम आते थे हमारे पास दाई तरफ से। ठीक है, यानी ये तातूना फेल मुजारे क्यों लाया गया है अक्सा? सर इसमें इस्तमरार रिपीटेशन का मतलब हो यानी ये रहा है, अरे काम बार बार। होता रहता था बार बार, यानी तुम हमारी तरफ दाएं तरफ से आते थे, ठीक है। ये मकसद है कि तुम आकर हमें जो तो ईमान वाले हैं, यानी ईमान की बातें नहीं सुनने देते थे कि हम ईमान ले आते, ठीक है, रुकावटें पैदा करते, एक दूसरे को कह रहे होंगे, और जो गुनाहगार हैं वो भी एक दूसरे को कह रहे होंगे कि तुम ही थे जो मेरे से गुनाह करवाते थे, तुम ही थे, तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैं भी रुल गया, ठीक है। तो इस जी किस्म की, सर। यानी रोजे क़यामत जब जो जिन जहन्नुम में जाने वाले हैं, वो चूंकि
احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون. اب وامتازوا اليوم ایھا المجرمون سورہ یاسین میں ہے کہ ذرا الگ الگ ہو جاؤ نا مجرموں، یعنی ذرا ٹولیاں بنا لو الگ الگ، کہ 10 نمبر والے ادھر ہوں، 9 نمبر والے ادھر ہوں، یعنی یہ کہ چور ادھر سارے اکٹھے ہو جائیں، مشرکین سارے ادھر اکٹھے ہو جائیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے سارے ادھر اکٹھے ہو جائیں، زانی ادھر اکٹھے ہو جائیں، رشوت خور ادھر اکٹھے ہو جائیں، سود کھانے والے ادھر اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ ساروں کے گروہ بنا دیے جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. پھر کیا ہوگا؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اب وہ ایک دوسرے کو کہیں گے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. وہ تم ہی تو مجھے سود کا مشورہ دیتے تھے، تم ہی تو مجھے زنا کے راستے دکھاتے تھے، تم ہی تو مجھے چوری کے طریقے بتاتے تھے. ایک دوسرے کو کہیں گے، چونکہ اب وہ ایک ہم جنس ہیں، ایک ہی گروہ کے لوگ ہوں گے. مشرکین ایک دوسرے کو کہیں گے ہاں بھائی تم ہی تو میرا راستہ روکنے والا. ابو جہل کہہ رہا ہوگا ابو لہب کو کہ تو ہی مجھے پٹیاں پڑھانے والا تھا. صحیح ہے. اللہم جی اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لنا. اوکے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. جی تو مس نادیہ نیکسٹ 2 اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جی سر. نسیم نواز آ جائیے. جی سر. سائمہ سعدیہ. سر جی قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. قالو کا فائل ہو گیا ہم. اب وہ ایک دوسرے میں بات ہو رہی ہے تو ایک گروہ کہہ رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے بل لم تکونوا مؤمنین. مجھے یہ بتائیے نسیم نواز، تکونو کا اسم کیا ہے؟ جی سر انتم. کون سا فعل ہے یہ فعل ناقص ہے اور مضارع ہے، لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا ہے. مضارع مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے. مومنین منصوب کیوں ہے؟ سر کانا کی خبر ہے نا تو اس لیے منصوب ہے. ٹھیک ہے، کانا کی خبر ہے اور منصوب ہو گیا. ویری گڈ. کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل، مفعول؟ سر یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل کون سے باب سے ہے؟ سر یہ ہے آمنا یؤمن، افعال سے، باب افعال سے. ٹھیک ہے. بل لم تکونوا مؤمنین. سو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ترجمہ ہوا پوری بات کا؟ قالو وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے یا ہاں نہیں جی، تھے. تم ایمان لانے والے نہ تھے. سائمہ آپ نے پچھلی آیات میں نوٹ کیا ہوگا کہ جی سر. انکم کنتم تأتوننا علی الیمین، رائٹ؟ جی سر. یہاں آ رہا ہے لم تکونوا مؤمنین. یہاں خبر ایک اسم آیا ہے، فعل نہیں آیا. کیا مقصد ہے اس کا؟ سر یہ آپ نے بتایا تھا یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے فعل کے نسبت اور اچھا، اس میں ہمیشگی پائی جاتی. یوں لے لیجئے کسی آدمی کا متصف ہو جانا ایک چیز سے، کہ یعنی یہ اب اس کی ذات کا حصہ ہے کہ وہ ہے ہی ایسا. پرماننٹ سر اس کی ٹریٹ. یعنی وہ ان کو گارنٹی سے کہہ رہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ تم تو ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، یعنی تم مومن نہ ہونے ہی نہیں والے تھے. اب تم سارا الزام ہم پر ڈال رہے ہو. جی سر. ٹھیک ہے. یعنی اگر فعل لے آیا جاتا نا تو اس کا مطلب کہ کہیں ہو سکتا ہے وہ ایمان لانے کی پوزیشن میں بھی ہوتے، بلکہ جواب دینے والے ان کو اس یقین کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی تم ایمان سے متصف ہی نہیں تھے، تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تمہارے اپنے دلوں کے اندر پرابلم تھا. اب تم الزام ہمیں دے رہے ہو. یعنی ہم فار ایگزامپل لے لیجیے ابو لہب ابو جہل کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تیری وجہ سے ایمان نہیں لایا، اور ابو جہل ابو لہب کہتا ہے کہ نہیں مجھ پہ مت ڈالو، تم تو خود ہی ایمان نہیں لانے والے تھے، تمہارا اپنا حال یہ تھا، یعنی تم خود اس کنڈیشن میں موجود تھے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ثبوت. یعنی کسی بات کا بیسیکلی اسم جو آتا ہے نا، یہ ایک آدمی کا کسی چیز سے متصف ہو جانا، کہ یعنی وہ چیز اس کے اندر پرماننٹ پائی جا رہی ہو. اوکے آگے چلتے ہیں. وما کان لنا علیکم من سلطان. یہ من سلطان نن ہے نا تنوین کے ساتھ، رائٹ؟ جی سر. اوکے. مجھے یہ بتائیے نسیم نواز، کانا کا اسم کیا ہے؟ جی سر کانا کا اسم جو کہ یہاں پہ ویسے مجرور ہے لیکن اسم بنے گا سلطان. ہاں جی، من زائدہ ہے
اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے اس کو پھر کہہ دیتے ہیں من استغراق کیا، جو ساری کنڈیشن کو لے رہا ہے. سلطان دلیل کو کہتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ماں کون سا ہے سائمہ؟ سر نافیہ. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا سائمہ؟ ما کان لنا علیکم من سلطان. اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی بھی زور. ہاں جی، یعنی ہمارا تم پر کوئی بھی زور، کوئی بھی طاقت، کچھ بھی ہمارا تمہارے پر کوئی کنٹرول نہیں تھا. وما کان لنا علیکم من سلطان. اب سلطان میں آپ کو دلیل بتا گیا. اصل میں سلطان کئی میننگ میں آتا ہے، دلیل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اچھا کیا آپ نے مجھے ریمائنڈ کر دیا. تو یہ کیا ہے یہاں پر جسے سلطہ کہتے ہیں، کسی کا کنٹرول ہونا کسی چیز پر. یہ بیسیکلی سلطان لفظ ہی ایک بادشاہت کا ہے، کسی پر حاوی ہو جانا. تو وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. مس نادیہ نیکسٹ 2 اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جی سر. سویا آپ ہی آ جائیے اور جی وہاں آپ آ جائیے. جی سر. جی، بل کنتم قوما طاغین. سو مس عظما، قوما طاغین منصوب کیوں ہے؟ سر یہاں پر یہ خبرو کانا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مرکب تصریفی ہو طاغین کر. کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ تو غین یا. ٹھیک ہے، اسم الفاعل بن رہا تھا جی بالکل اسم طاغن. الفاعل ہے سر. ٹھیک ہے، طاغن. جی سو یہ پھر پورا لا کے تو بنے گا طاغیون، رائٹ؟ جی سر بالکل. طاغیون. وہ پھر 2 آ گئے حروف علت، ایک کو ڈراپ ہونا ہے تو وہ مادے کا ڈراپ ہوگا، اور پھر واو کی وجہ سے پیچھے ہم پیش دینی پڑے گی. کیا بن گیا؟ طاغونا. جی طاغونا کی سر. منصوب کیا ہوگی؟ طاغونا، طاغینا، طاغینا. جی ٹھیک ہے، سو جمع مذکر سالم. سو کیا جی مطلب سر. ہوا؟ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے. بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے. اب آپ پھر جی نوٹ کریں کہ طاغین اسم الفاعل آیا ہے، فعل نہیں لایا گیا. جی سر بالکل. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اب یہ ان کی ذات کا حصہ بن چکا تھا، یعنی یہ تھے ہی طبیعت، سرکش. تم طبیعت دن ہی سرکش تھے. جی ہم پہ بالکل. کوئی الزام نہ لگاؤ کہ ہم نے تمہیں بہکایا ہے. یعنی کوئی چور کسی چور کو کہے گا بھائی تم مجھے بھڑکانے والے تھے، وہ دوسرا کہے گا نہیں بھائی تمہاری اپنی نفس کی بیماری تھی، تم طبیعت نہیں چور تھے، مجھ پہ نہ لگاؤ. جی سر. یعنی جس انسان آج کوئی کسی پہ الزام یعنی روزہ قیامت نہیں لگا سکے گا. اگر میں خدا نہ خواستہ کسی برائی کی طرف گیا تو اس کا مطلب میرے نفس نے مجھے ابھارا تو میں گیا نا. جی سر کسی کے بالکل. کہنے پہ، کسی کا کہنا تو مجھے موٹیویٹ تو کر سکتا ہے، لیکن میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. بالکل سر ایسے ہی. اوکے آگے چلتے ہیں. زویا پڑھیے. جی استاد. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. ٹھیک ہے، حق علینا قول ربنا. حق کا فاعل کیا ہے؟ قول ربنا، یہ مرکب اضافی اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی حق علینا قول ربنا، اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بات ثابت ہو جانا، ثابت یقین ہو ہو جانا. جانا. جی ٹھیک ہے، یا بیسیکلی فائنل ڈیسیجن بھی پکا ہو جانا. ٹھیک ہے، حق علینا جی قول ربنا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وعدے کیے تھے روزے قیامت بات کے ثابت حوالے ہو سے، گئی. وہ تمام باتیں کیا ہیں؟ پوری ہو گئی ہیں. حق علینا قول ربنا، ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، ہم پر پوری ہو چکی ہے. وہ بات کیا ہے؟ انا لذائقون. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے یہ لام کیا ہے اور ذائقون کون سا اسم ہے؟ اس کے بارے میں تفصیلات دیں. جی استاد، یہ لام لام متحلقہ ہے، اور ذائقون اسم الفاعل ہے، زال واو قاف سے، ذاق یذیق باب ضاد سے، ذاق یذوق ہوتا ہے چکھنا، یذوق باب جی نون سے. باب نون سے. تو اسم اور الفاعل جمع مذکر. ذائقون سے پھر ذائقون بن گیا چینج ہو کر. جی
वाव को बदला गया, जायकुन, ओके, चखने वाला। जी तो ये क्यों नहीं कहा कि बेश इन्ना नज़ूकु, वो कह रहे हैं इन्ना लज़ाइकुना, इस्मुल फाइल इस्म के जरिए जुमला बात की गई है, क्यों? उस्ताद फिर यही होगा कि इस्म लेके आने से बात ज़्यादा श्योरिटी होती है और यानी यकीन मुत्तसिफ होना, आपने जैसा ही बताया। देखिए फर्क है, जी आप बात तकरीबन वही कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इस यकीनी से थोड़ा आगे बढ़ें। देखें जी फेल के अंदर एक क्या होती है, तजदीद होती है। माजी हो तो उसमें भी तजदीद ही होती है, नहीं कोई काम आदमी माजी में करता रहा है लेकिन करता रहा है। कोई फेल मुजारे में है तो उसमें इस्तिमरार कहते हैं। नज़ूकु, हम खाते रहेंगे, लेकिन इट इज अ पॉसिबल के बीच में हो सकता है हम ना भी चखें, ठीक है ना? जी उस्ताद। अगर वो कहें इन्ना नज़ूकु, हम जरूर चखेंगे, इसमीन एक तो मुस्तकबिल में चला जाएगा, सही है, जी उस्ताद। या अभी चखना तो उन्होंने शुरू नहीं किया, अभी तो चखना है, तो वो फिर मुस्तकबिल में कहेंगे ना इन्ना नज़ूकु, हम चखेंगे, तो उसमें मुजारे हो जाएगा, तो इसका मतलब पता नहीं कब चखेंगे, हो सकता है अभी मजीद गैप है, राइट? जी फिर उसके अंदर उस्ताद। इस्तिमरार आएगा कि वो इस्तिमरार में वक्फा भी होता है बीच में, ठीक है, कंटिन्यूस बात होती है लेकिन बीच में वक्फात भी होते हैं। लेकिन इस्मुल फाइल लाने से क्या हो गया, हम चखने वाले हैं, इट इज गोइंग टू हैपन, जी सही। इसके अंदर एक सबूत पाया जा रहा है, एक 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 किसी चीज का साबित हो जाना पाया जा रहा है। मैं कहूं अन्नी अदरिबुक, मैं तुम्हें मारूंगा, सही है, जी और मैं कहूं अन्नी दारिबुन और अन्नी दारिबू का क्या मतलब, दोनों में क्या फर्क है? अन्नी अदरिबुक, अन्नी लदारिबुक, क्या मतलब है इसका? औ इन्नी, उस्ताद फेल है तो फिर उसमें मुस्तकबिल के मानी है, और फिर वही आपने जैसा ही बताया कि इस्मुल फाइल होने पर वो बात सबूत पाया जाएगा उसमें। मिस उस्मा क्या फर्क है इन्नी अदरिबुक और इन्नी दारिबुक? सर जिसमें इस्मुल फाइल के तौर पर आया है उसमें यकीनी तौर पर मैं मारूंगा तुम्हें, जरूर मारूंगा, यानी और ये हाँ होने वाला है, होने वाला है, साबित यानी किया जा रहा है। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जी दोनों में क्या है, ये फर्क है कि इन्नी दारिबुक का मतलब के बी रेडी, मैं तुम्हें मारूंगा, श्योर दैट इज डन, शायद, जी और अदरिबू का मतलब है कि हो सकता है बीच में कोई ऐसा काम आ जाए जो मैंने इरादा तो कर लिया है, लेकिन मे बी बीच में कोई ऐसी चीज आ जाए कि मैं वो इरादा तर्क कर दूं। जी सर, लेकिन जहां आ जाए इन्नी दारिबुक, आई एम गोइंग टू बीट यू, कंफर्म, जी तो बी प्रिपेयर्ड, ये फर्क है दोनों में। इन्ना लज़ाइकून, फॉर श्योर, फ़हक़ अलैना क़ौलु रब्बिना, हम जरूर बेजरूर चखने वाले हैं, ठीक है, ओके। जी सर, ये बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को जहन में बिठा लेना कुरान मजीद के हवाले से, कि ये यहाँ पर माजी फेल लाया जा सकता था लेकिन इसम लाया गया है, और इसम कहीं भी बिला वजह नहीं लाया गया, बहुत मखसूस बड़ा खास वजह पर मौजूद है कुरान मजीद में, ओके। फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, जी तो मिस उज़मा अग़वैनाकुम को एक्सप्लेन कर दें। अगवई नाकुम में अगवा यगवी बाब इफ़आल से फेले माजी है, नाहनु इसमें फाइल है और कुम मफ़ऊल है, और इसका तर्जुमा होगा बस हमने गुमराह किया तुम सबको। अग़वा युग़वी, जी अग़वा युग़वी बाबे युगवी इफ़आल से, इफ़आल से, अग़वा युग़वी, अच्छा, अग़वा युग़वी। अग़वैना का फाइल क्या है नाहनु और कुम क्या चीज है? मफ़ूल, मफ़ऊल है, ठीक है। फ़अग़वैनाकुम क्या तर्जुमा हुआ? हमने बहका दिया या गुमराह किया तुम सबको। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज, एक लफ्ज लेकर आऊंगा, बेयर विद इट। जी सर, लफ्ज अच्छा नहीं है लेकिन आपके जहन में थोड़ा कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए, आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा
जरूर हमारी कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, उर्दू का मुझे उससे अच्छा तर्जुमा उसका नहीं आता। जी सर। कहते हैं सेड्यूस करना, जी सर। ठीक है, जी सर। सेड्यूस करना। बेसिकली ये लफ्ज ओपनली तो बहुत गलत मीनिंग में यूज होता है, लेकिन ये किसी भी मीनिंग में हो सकता है। ओके सर। किसी को अट्रैक्ट करना। अब अट्रैक्ट किसी कई मीनिंग में होता है ना, मिसाल के तौर पे एक खातून सज संवर कर एक मर्द को अट्रैक्ट करती है, राइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द जी सेम सर। अगवा, अगवत। जी सर बिल्कुल। ये और भी ये जितने भी, लेकिन ये रॉन्ग मीनिंग में जाता है, ये नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप और आ जाएं, ये जितने दुकानें सजा के खड़े होते हैं ये भी तो यही कर रहे होते हैं ना, जी बिल्कुल सर। लोगों को अपनी दुकान की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन दैट इज पॉजिटिव थिंग, काम दोनों बराबर हैं। जी सर। एक औरत का किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, या किसी मर्द का किसी औरत को इस तरह से यानी किसी तरीके से, और सेम काम दुकानों वाले भी करें, दुकान सजा संवार कर लोग भी आए, बड़ा वो क्या कहते हैं, दुकान के अंदर सामान जैसा भी हो, बाहर जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी होती है कि लोग आए दाखिल हो अंदर। जी सर। दैट इज एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ अगवा युगवी, किसी को सजा संवार कर उसको अपने अपनी तरफ रागिब कर लेना। तो वो यही कह रहे हैं अगवैनाकुम, यानी हम लोगों ने तुम्हें बहलाया फुसलाया, ओके सर। हम लोगों ने तुम्हें। अब फिर वो तर्जुमा जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, रिजल्ट ये होगा ना, गुमराह कर दिया ना। असल में जी जी। देखें, सिड्यूस करना भी तो गुमराह ही करना होता है। जी सर बिल्कुल। लेकिन ये लफ्ज मैं क्यों लाया हूं, देखिए गुमराह करने में जरा थोड़ी सॉफ्टनेस स्टिल पाई जा रही है, राइट। जी सर बिल्कुल। लेकिन इस लफ्ज ने बिल्कुल आपके जहन में, मुझे उम्मीद है कि मीनिंग को नक्श कर दिया होगा। अच्छा, ये स्टोरी है, जी सर बिल्कुल। अगवैनाकुम, यानी हम लोगों ने तुम्हें सजा संवार कर मामलात को पेश किया। सुभान अल्लाह। फिर आगे वो मजीद क्या कह रहे हैं, जोया पढ़ें। इन्ना कुन्ना गावीन। इन्ना में हाँ। नहनु इस्म, कुन्ना में इस्म कुन्ना नहनु यानी ना मंसूब जमीर, नहनु की गावीन खबरू कुन्ना, गावीन इस्मुल फाइल, गावीन यानी सड्यूस करने वाला, गुमराह करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, और वो इस्म की बुनियाद पर लाया गया है, फेल नहीं लाया गया। यानी मिस उस्मा क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि वो अब उनकी तबीयत का हिस्सा ही था। यानी साडा तो काम ही है इसी, जी भाई हमारा तो काम ही ये था, हमारी जी। तो जॉब ही ये थी, हमारा तो बिजनेस ही ये था पूरा। तो अगवैना इन्ना कुन्ना गावीन, हमारा तो काम ही यही था। तुम फंस गए, लेकिन फंसे तुम अपनी वजह से हो, हमने तो सिर्फ तुम्हें अट्रैक्ट किया था, काबू तुम आ गए, लेकिन काबू तुम आए अपनी वजह से। डोंट ब्लेम अस। जी सर बिल्कुल ओके, ऐसे ही। आगे क्या हुआ जी मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएं। जी सर। अम, अतीका आप आइए, और अक्सा आयशा जवेरिया में से जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया वो आ जाएं। ओके, अक्सा। जी सर। इन्नहुम यौमइज़िन फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, मुश्तरिकून का जुमले में क्या मकाम है? सर ये हाल बन रहा है किसका? हुम का, हुम ज़मीर अच्छा, का। वाह, क्या आपने साइंस लड़ाई है। अतीका क्या जुमले में क्या मकाम है? सर ये खबरो इन्ना है। ये खबर हो इन्ना है। अक्सा कहाँ रहती हैं आप? जी सर, खबर नहीं। ओके, सो यौमइज़िन ये ज़र्फ है, ये तनवीन किस लिए है, कोई बताएगा? अतीका किस लिए है तनवीन यौमइज़िन सर के ये नीचे? तनवीन इवज है, यहाँ पे एक जुमला महजूफ होता है तो उस वजह से तनवीन लगाई जाती है। हाँ जी, वो जो पीछे पूरी स्टोरी सुनाई गई है, रिजल्टेंटली जी। उस सारी बातों का जो नतीजा क्या निकला, इन्नहुम यौमइज़िन फिल अज़ाबि मुश्तरिकून। हम इसमो इन्ना, यौमइज़िन ये ज़र्फ, और आगे तनवीन इवज है, फिल अज़ाबि अज़ाब में, मुश्तरिकूना ये मुतल्लिक़ की खबर था, मुकद्दम कर दिया गया। क्या तर्जुमा है अतीका? जी, बस उस दिन वो
عذاب میں شریک ہوں گے. یعنی اسم فاعل کا صیغہ مشترکن باب افعال میں سے، افتعال میں جی سے کہ افعال میں سے؟ افتعال میں سے، افتعال میں. افتعال میں سے. افتعال یفتعل مفتعل. اوکے، تو یعنی اب کیا ہوا کہ وہ جو پیچھے ان کی آپس میں بحث چیز چل رہی ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ریزلٹلی الگ الگ وہ نہیں ہوں گے، کسی کی آپس میں ان کی بات چیت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، عذاب میں سارے اکٹھے ہی جائیں گے. اوکے عائشہ، جی ان جی کذالک نفعل بالمجرمین، خبر ان کیا ہے؟ نفعل بالمجرمین. ٹھیک ہے، اصل میں کذالک کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا یہیں سے پکا ذہن میں بٹھا لیجئے. کذالک اگلا جو فعل ہوتا ہے نا، اس کے محذوف مصدر کے متعلق ہوتا ہے. کس کے متعلق ہوتا ہے؟ محذوف مصدر کے مطابق. ہاں جی، یعنی ہو سکتا تھا فعلا انا نفعل بالمجرمین فعلا کذالک، ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح کا کام، اصل میں اسی جی کے متعلق ہے یہ. اوکے، سو نفعل کا فاعل کیا ہے اقصا؟ نحنو. مجرم کون سا اس میں ہے؟ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، بالمجرمین کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سری متعلق کے فعل ہے. کیا ترجمہ ہوا اس کا پوری بات کا؟ انا کذالک نفعل بالمجرمین. بے شک ہم اسی طرح کریں گے مجرموں کے ساتھ. کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے ہیں. کرتے ہیں. انا جی کذالک نفعل بالمجرمین. اوکے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. عتیقہ ذرا ایکسپلین کر دیں پورا جملہ. جی سر. انہم، انا حرف تاکید، ہم اس کا اسم و انا، کانو سے اس کی خبر شروع ہو جائے گی. کانو اس میں ہم اس کا اسم ہے، اذا فجائیہ، اور قیلا یہاں پہ نہیں مجہول اذا ہے. فجائیہ نہیں ہے، وہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، فاذا کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی یا پھر وہ جملہ اسمیہ میں ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراً اسم آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے عتیقہ؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہے کہ اس میں اصل میں یستکبرون خبر تھی کانو کے متعلق، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کانو کی خبر ہے. ذرا اتنی بات کا ترجمہ کریں، انہم کانوا یستکبرون. بے شک وہ تکبر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اوکے گڈ. اب اس پر آ جائیں، کب کرتے تھے؟ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اذا کو یہاں پہ ظرف کہہ لیں. ظرف بھی ہے اور شرط کا بھی کام کر رہا ہے. جی قیلا کیا ہے؟ قیل جی مجہول، اور ہوا نائب الفاعل، لہم اس کے متعلق ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ یہ مقولہ ہو جائے گا. اذا قیل لا لهم لا الہ الا اللہ، تو کیا ترجمہ جی ہوا؟ جب جب ان سے، جب وہ ان سے اذا قیل لا، جب وہ ان سے سوری جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں جی، تھا میں ہے نا، پیچھے کانو آ رہا ہے نا، انہم کانو، یعنی یقینی جی طور پر جب ان سے کہا جاتا تھا قول لا الہ الا اللہ، یستکبرون، وہ تکبر کیا کرتے تھے. باب استفعال کاف بارہ مادہ استکبر یستکبر، باب استفعال سے ہم اس کا فاعل ہے جو کانو کی خبر ہے. ٹھیک ہے، بظاہر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پورا جملہ ہی کانو کی خبر لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. اذا جی سر. جملہ کیا ہے؟ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، جملہ شرط بن رہا ہے، اور یستکبرون جواب شرط بن رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کیا کرتے تھے. جی اوکے سر. عائشہ، یقولون کا فاعل کیا ہے؟ ہم. مجھے یہ بتائیے عتیقہ، یہ واو کیا فائدہ دے گا یہاں پر؟ سر میں نے تو اس کو عطف کیا ہے. ہاں جی، پچھلی بات پر عطف ہے، یستکبرون و یقولون، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا آیات کے آخر میں یہاں پر لا لکھا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑے ہونا، جی کنٹینیو رکھیں بات کو. یعنی یہ آیت اس طرح بنے گی، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اوکے، یقولون کا فاعل ہم، مقولہ کیا ہے ان کا جویریہ؟
इन्ना लतारिकु आलिहतिना लशाइरिम मजनून पूरा हो गया लिशाइर मजनून। ओके, लिशाइर क्या है आयशा? इस्तफहाम इन्ना में इस्म इन्ना क्या है? नहनु नहनु। ओके, अक्सा लाम कौन सा है लतारिकू पर? सर लाम मुज़हलिका है ठीक है, तारिकू आलिहतिना कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी इजाफी है। ओके, ये तारिकू कौन सा इस्म है? इस्मुल फाइल क्या मतलब होता है इसका? सर ये ट्रांसलेशन लतारिकु का। हाँ जी, जी सर, हम छोड़ने वाले हैं। इन्ना लतारिकू आलिहतिना, क्या तर्जुमा हुआ? क्या हम छोड़ने वाले हैं हमारे माबूदों को? हमारे माबूदों को, अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं। लिशाइरिन मजनून, और मजनून कौन सा इस्म है? इस्मुल मफऊल है। अच्छा, इसका जुमले में क्या मकाम है? सर ये सिफत बन रही है ये शायर सिफ्त की। बन रही है किसकी? शायर की। शायर की। शायरुन कौन सा इसम है? इस्मुल फाइल। वेरी गुड। इन्ना की खबर क्या है जुमले में? लतारिकु आलिहतिना ठीक है, और लिशाइरिन शायरी मजनून जुमले में क्या है? सर मुताल्लिक है। क्या तर्जुमा हुआ पूरी बात का? वयक़ूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। और वो कहेंगे क्या हम छोड़ने वाले हैं अपने माबूदों को एक शायर मजनून के लिए। वो कहते थे, ठीक है, इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उनसे कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह कौल, वो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक नाउज़ुबिल्लाह एक मजनून शायर के वजह से छोड़ने वाले हैं? यानी क्या उसकी जी इस सर। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हम अपने इन माबूदों को छोड़ दें? और नाउज़ुबिल्लाह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो इल्जामात लगा रहे थे, एक शायर, दूसरा नाउज़ुबिल्लाह दीवानगी का। मजनून। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। रुखसाना आइए, फ़हीमा अफजल। जी सर। ठीक है, फ़हीमा, बल जा अबिल हक़ व सद्दक़ल मुरसलीन पूरे को एक्सप्लेन कर दें। जी सर जी, बल वही है पिछली बात की नफी और आगे को इजाब के लिए जा माजी है, जीम या हमजा बापदौत से जा या जीउ हुआ फाइल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राजे है और बिल हक के मुतालिक हो जाएगा। वसद्दक़ल मुरसलीन अतफ होकर सद्दक़ा बाब तफ़ईल से है, हुआ फाइल है और अल मुरसलीन इसमें मफूल है। मुरसलीन इसमें मफूल, क्या तर्जुमा हुआ पूरी बात का? बल्कि वो हक लेकर आए और रसूलों की तस्दीक की। रसूलों की तस्दीक की, यानी वो जिस बात को ये शेर और ये इस तरह की बातें कह रहे हैं, असल तो ये है कि वो हक लेकर आए हैं और जो रसूल भेजे गए थे उनकी उन्होंने तस्दीक की है। आगे है रुखसाना, इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, जल्दी से एक्सप्लेन कर दें। इन्ना हरफ ताकीद है और अंतुम इस्मु इन्ना है, लाम मुज़हलिका है और ज़ाइकुल अज़ाबी ये मुरक्कब इजाफी है और ये इस्मुल फाइल भी है ज़ाइकु, और अज़ाबुल अलीम ये मुरक्कब तौसीफी है। क्या तर्जुमा हुआ? यकीनन तुम सब दर्दनाक अजाब चखने वाले हो। हाँ जी, यानी तुम सब के साथ ये होने वाला है। वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, फ़हीमा जल्दी से एक्सप्लेन कर दें। जी सर जी, वाव तफ के लिए मा नफी का है तो जौना जीम जा या बाबा या माता है, बाब दुआत से ये मजहूल है, अंतुम इसमें फाइल है, इल्ला हसर के लिए आया है क्योंकि पीछे नफी है, और मा कुंतुम तामलूना ये पूरा मफूल है और मा की हालत नसब है इसमें, कुंतुम में अंतुम इसम है और तामलूना इसकी खबरू काना है। क्या तर्जुमा हुआ? और नहीं तुम बदला दिया जाओगे मगर जो तुम अमल करते थे, सिवाय उसके जो तुम अमल करते थे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, इल्ला इस्तिस्ना के लिए है। वो जो तुजज़ौना में फाइल अंतुम है उसमें से इस्तिस्ना किया गया है, किसको? इबादल्लाह, इसलिए मंसूब आ रहा है, मुनक़ते है। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मुखलसीन यहाँ पर
منصوب ہے اور یہ صفت ہے عباد کی، مخلصن اسم المفعول کا صیغہ ہے، یعنی جن کو خالص کیا گیا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے سوائے اس کے کہ جو تم کیا کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جن کو بدلہ دیا گیا. یعنی یہاں پہ یہ کفار سے خطاب ہے کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تمہارے برے اعمال تھے، تمہیں اسی کا بدلہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. یہ آگے آیات کنٹینیو ہے، ان کے بدلے کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، یعنی ان کو کیا بدلہ دیا جائے گا. تو وہ آگے پھر جنت کا تذکرہ ہے اور پھر واپس جہنم کی طرف بات لوٹے گی. تو یہ سورہ صافات کی یہ تمام آیات بڑی ہمیں بیسیکلی جھنجھوڑنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے اور ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی بچائے، ہمیں عذاب قبر سے بھی بچائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوں اور ان تمام عذاب، ان تمام مشکلات سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانے والے بن جائیں وہ اعمال. اور ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کے طلبگار ہیں کہ وہ اپنی طرف سے ہمیں مدد بھیجے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہمیشہ ہر نماز کے بعد مانگا کریں، کیونکہ ہم اللہ کی مدد، اس کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.